ڈاکٹر صاحب کی بات بہت قیمتی ہے، اس بات کو آپ یہاں سے بھلا مت دیجیے گا، بلکہ اپنے ذہن میں رکھیے اور جب تک زندگی باقی ہے ذہن میں بسا کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پڑھنے کی جو بات ہے، اسٹڈی، مطالعہ، اکیلے میں بھی ہو، بھیڑ میں بھی ہو، سب جگہ مطالعے کی عادت ڈالیے۔ اس کے بعد یہ جو دینی تعلیمی مشن ہے جو 3 دن کا ہمارا چل رہا ہے، یہ آپ کی نشست اور آپ کی کڑی چل رہی ہے، یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہمارے مدرسے کے نائب ناظم تعلیمات حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ، آپ کے زیر نگرانی یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی جو بھی سروسز ہیں یا اس کی جو بھی تیاریاں ہیں، یہ حضرت مولانا دعوت برکاتہ العالیہ کی کوششوں اور کاوشوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ہم انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کریں گے حضرت تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ المصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنے شہر کے مختلف اسکولوں اور کالجوں سے آئے ہوئے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے اس نشان ادارے کے اندر دینی اور تعلیمی انتظام کے اندر شرکت کی گئی ہے، یہ نہایت ہی قابل مبارکباد ہے۔ اسی طریقے سے ان اسکولوں اور کالج کے جو ذمہ دار حضرات ہیں اور ان کے جو ٹیچرز وغیرہ ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین اور ان کے سرپرست وہ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے کی کوشش کی اور اس کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو انتہا جزائے خیر عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اس طرح کا جب بھی کوئی پروگرام ہو تو اس کے اندر اپنے طلباء کو اور اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ طلباء دینی تعلیم عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنے کا انہیں موقع ملے، اور عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم کے اندر بھی انہیں مہارت حاصل اور دینی مسائل سے بھی انہیں واقفیت ہوتی چلی جائے تاکہ دین دنیا دونوں کے اندر انہیں کامیابی ملے۔ میرے عزیز طلباء، میں آپ کو ایک بات خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے اس وقت آپ لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں، یعنی زمانہ طالب علمی کا جو زمانہ ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ قیمتی اور اہم اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس زمانے کو ایسے ہی لاپرواہی میں اپنی توجہی میں اگر آپ نے گزار دی، یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا جو مستقبل ہے، آپ کا جو فیوچر ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے اس زمانے طالب علمی کو جس کے اندر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے پوری توجہ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے محنت اور لگن کے ساتھ اگر آپ نے علم حاصل کیا تو آپ کا جو مستقبل ہے، آپ کا جو فیوچر ہے، آپ کا جو باقی جو زندگی ہے، یا آپ کی پوری زندگی سمجھ جائے اور آپ کی پوری زندگی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس وقت کو صحیح ڈھنگ سے گزاریں۔ یہ دور جتنا شاندار طریقے سے گزاریں گے آپ، جتنی اس کے اندر محنت و مشقت اٹھائیں گے آپ، جتنی آپ قربانیاں پیش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، بڑا سے بڑا انجینئر بھی بن سکتے ہیں، بڑا سے بڑا وکیل اور جج بھی بن سکتے ہیں، اور IAS PCS آپ آفیسر بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے محنت کی تو آپ جو چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان محنت کرے۔ لیکن آپ چاہیں کسی اور کی محنت کی وجہ سے، کسی اور کی توجہ کی وجہ سے آپ کچھ حاصل کر لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان جو کچھ بھی بنا ہے وہ اپنے ذاتی محنت سے بنتا ہے، اپنی ذاتی محنت ہوتی ہے تبھی انسان کچھ بن سکتا ہے۔ آپ کے ماں باپ چاہیں جتنا چاہیں، جتنا عالیشان سے عالیشان اسکول میں آپ کا ایڈمیشن کرا دیں، جتنا عالیشان سے عالیشان اور ماہر سے ماہر ٹیچروں کو آپ کے پیچھے لگا دیں، لیکن آپ یہ طے کر لیں کہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے تو آپ کو کوئی بھی اسکول اور کوئی بھی ٹیچر آپ کو نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے، اس لیے کہ آپ نے من بنا لیا ہے، آپ نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں نہیں پڑھنا۔
लिहाजा आपको कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल, चाहे कितना ही काबिल कोई टीचर हो, आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है और आपको कुछ बना नहीं सकता। लेकिन अगर आपने तय कर लिया, आपने मन बना लिया, आपने ठान लिया कि नहीं मुझे कुछ बनना है, मुझे कोई डॉक्टर बनना है, मुझे कोई इंजीनियर बनना है या कोई भी और कोई बड़ा पोस्ट हासिल करना है, तो जाहिर सी बात इसके लिए आपको उसी एतबार से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, मशक्कत भी आपको उठानी पड़ेगी, कुर्बानी भी आपको देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे, मशक्कत उठाएंगे और कुर्बानियाँ देंगे तालीम हासिल करने के लिए, तो आप जो बनना चाहेंगे इंशाअल्लाह बन जाएंगे। आज के इस दौर में मेरे अजीज तलबा, आप कौम के बड़ी कीमती सरमाया हैं। आपसे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, आपके वालिदैन को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, या मेरा बेटा कोई टीचर बनेगा, या मेरा बेटा कोई ऑफिसर बनेगा। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है और इसी तरीके से पास पड़ोस के लोगों की भी ख्वाहिश होती है, आपके कौम मिल्लत के लोगों की भी ख्वाहिश है, कि तमन्ना है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे प्रोफेसर बने, हमारे बच्चे वकील बने, हमारे बच्चे जज बने, हमारे बच्चे माहिर साइंसदान बने। आज मेरे अजीज तलबा, आज हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, आज हमें इंजीनियर की भी जरूरत है, आज हमें प्रोफेसर की भी जरूरत है। लेकिन मेरे दोस्तों, मामूली डॉक्टर बनने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए कि जो दौर है इख्तिसास का दौर है, ये जो दौर है स्पेशलिस्ट का दौर है, ये जो दौर है माहिरीन का दौर है। जब तक आप इसके अंदर आप मेहनत नहीं करेंगे, अंत तक कोशिश नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक आप चाहे कोई माहिर डॉक्टर बन जाए, कोई माहिर इंजीनियर बन जाए, कोई माहिर प्रोफेसर बन जाए, या कोई माहिर और कोई डिग्री हासिल कर लें, ये नामुमकिन है। आज आप देख लीजिए, छोटे छोटे डॉक्टरों की कोई कदर नहीं है। पहले जो जमाना था उसके अंदर मामूली से जो डॉक्टर होते थे कोई कदर हुआ करती थी और लोग उनके पास जाया करते थे। लेकिन आज मामूली डॉक्टरों की कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये जो दौर है स्पेशलिस्ट का है, और कोई आंख का स्पेशलिस्ट है तो लोग उसके पास जाते हैं, और कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है तो लोग उसके पास जाते हैं। लेकिन अगर कोई आम डॉक्टर है, यूएस है, तो उसके पास कोई नहीं जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट किया जाए और हमारे मुस्तकबिल के अंदर चल करके हमें क्या हो, हमें इज्जत मिले, एहतराम मिले और हम दुनिया और आखिरत के अंदर दोनों जहां में कामयाबी हासिल करें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेहनत करें। मेहनत ही एक ऐसी कुंजी है जिसके लिए जरिए से इंसान कामयाब हो सकता है। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है और यही तमन्ना है कि आप लोग जिस लाइन में भी पढ़ रहे हो, चाहे मदरसे की लाइन में पढ़ रहे हो या स्कूल के लाइन में पढ़ रहे हो, आप मेहनत करें, आप अपने वक्त को ज़ाया न करें। वक्त को ज़ाया करेंगे तो बाद में आप पछताएंगे, बाद में पछताने से कोई हासिल होने वाला नहीं है। अभी ये मेहनत करने का वक्त है। इस वक्त में आप जितनी मेहनत कर लेंगे उतनी ही आपका जो मुस्तकबिल होगा, उतनी आपका जो फ्यूचर होगा उतनी ही कामयाब होगा, उतनी ही आलिशान होगा। आप कोशिश करेंगे। आप देखिए, जो बड़े डॉक्टर बन जाते हैं उनकी कितनी कदर होती है, उनका कितना एहतराम किया जाता है, उनका कितना रिस्पेक्ट किया जाता है। उनसे मिलना होता है, उनसे मुलाकात करना होता है, तो पहले उनसे क्या है, उनसे पहले वक्त लेना पड़ता है, उनसे टाइम फिक्स कराना पड़ता है, उसके बाद से इंसान उससे मुलाकात कर सकता है। मेरे दोस्तों, ये मकाम हासिल करने के लिए, ये डिग्री हासिल करने के लिए हमें पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी डॉक्टर से मिल लीजिए, तो कोई बड़ा डॉक्टर होता है तो कैसे बना, क्या ऐसे ही हम जिस तरह से खेल कूद कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, क्या इस तरीके से कोई इंसान काबिल डॉक्टर बन सकता है? क्या इस तरीके से कोई इंसान कोई माहिर डॉक्टर बन सकता है? हरगिज़ नहीं बन सकता है। अगर हमें कोई माहिर डॉक्टर बनना है, हमें कोई माहिर इंजीनियर बनना है या कोई भी बड़ी डिग्री हासिल करनी है, उसके लिए शर्त यह है कि हम मेहनत करें, कुर्बानी दें और हमारे अंदर जज्बा भी होना चाहिए, हौसला भी होना चाहिए, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। बहुत से तलबा ऐसे होते हैं, स्कूलों के अंदर जब आप एडमिशन लिया जाता है तो बहुत ज्यादा तादाद होती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता 5वीं तक, 6वीं तक, 7वीं तक, 8वीं तक जाते जाते अक्सर तलबा जो है स्कूल से निकल जाते हैं और अपनी तालीम को मौकूफ कर देते हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह यही होती है कि उनकी बुनियादें मजबूत नहीं होती हैं, उनकी बुनियादें कमजोर होती हैं। आगे के जो चैप्टर होते हैं, आगे के जो असबाब होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। अब मजबूरन उन्हें तालीम को छोड़ना पड़ता है और तालीम से महरूम हो जाते हैं। इस तरीके से हमारी कौम का एक बड़ा सरमाया और बड़ा कीमती सरमाया ज़ाया हो जाता है। इसलिए अगर ये तलबा आगे बढ़ते, मेहनत करते, इन्हीं तलबा में से, इन्हीं स्टूडेंट में से कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई प्रोफेसर बनता और आला से आला मकाम पर
वो पहुंचता, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करता, अपने मुल्क को मिल्लत का भी नाम रोशन करता, और इसी तरीके से अपने मोहल्ले का भी नाम रोशन करता, अपने शहर का भी नाम रोशन करता। मेरे अजीज तलबा और मैं अपने अजीज जो स्कूलों से और कॉलेज से जो स्टूडेंट आए हुए हैं, मैं इन सबों से मैं दरख्वास्त करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग अपने इस दौर को, इस जमाने को, जिसके अंदर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, इसमें मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करिए। अब आप मेहनत करेंगे, यकीनन आप जो चाहेंगे बन जाएंगे। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखा है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जौहर दिया है, एक खूबी दिया है, जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इंसान जब ठान लेता है कि हमें ये बनना है तो बन करके दिखा देता है। इंसान जब ठान लेता है कि मुझे पायलट बनना है और हवाई जहाज मुझे उड़ाना है तो फिजा के अंदर हवाई जहाज उड़ा देता है। इंसान जब ठान लेता है कि मुझे मौत के कुएं के अंदर गाड़ी चलानी है, जबकि आप जानते हैं कि मौत का कुआं कितना खतरनाक होता है, उसके अंदर गाड़ी चलाना क्या है, जिंदगी से खेलना होता है। जब इंसान ठान लेता है कि मुझे मौत के कुएं के अंदर गाड़ी चलानी है और उसके अंदर शौक पैदा हो जाता है, उसके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, वो करके दिखा देता है। मेरा अजीज तलबा, मैं चाह रहा हूँ कि आप अभी से आज़म कर लें, हौसला करें कि हमें कोई डॉक्टर बनना है, हमें कोई इंजीनियर बनना है। आप अपना हदफ और अपना गोल अपना आप मुतय्यन कर लें, हमें ये काम करना है। उसके बाद अपनी जिंदगी को उसी के एतबार से आप लेकर के आगे बढ़ाएं और अपना कोई रहनुमा मुकर्रर कर लें, उसके रहनुमाई में और उसकी सरपरस्ती में। अगर आपको डॉक्टर बनना है, किसी अच्छे माहिर डॉक्टर का आप इंतखाब कर लें और उसकी रहनुमाई में, उसकी सरपरस्ती में आप अपने तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाएं। यकीनन आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको एक माहिर किस्म का अल्लाह ताला आपको डॉक्टर बनाएगा, या जो बनना चाहेंगे अल्लाह ताला आपको बनाएगा। अगर आपका आना यहाँ पर बहुत ही काबिल मुबारकबाद है, आप यहाँ पर आए, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ा खैर अता फरमाए और आपको दुनिया असली तालीम के साथ साथ अल्लाह ताला आपको दीनी तालीम से भी अल्लाह ताला आरास्ता फरमाते रहे और अल्लाह ताला आपके आलिम को यहाँ कबूल फरमाए। और हमारे बदले के जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इसके अंदर कोशिशें की हैं, उन सबको अल्लाह ताला बेइंतहा अजर अज़ीम अता फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।